اور آپ نے جسمانی تعلقات رکھے تھے, ٹھیک ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں بالکل ایسے ہی. مطلب آپ نے کچھ جتنی دفعہ بھی ملی ہیں آپ کے یہ تعلقات ان کے ساتھ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل. وہ ڈینائی کرتا ہے, وہ اس چیز کو نہیں مانتا, وہ کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہمارے اندر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ لڑکی لڑکا ساتھ رہے, اور جس طرح کی ہماری ویڈیوز ہیں آپ ان کو کیا بہن بھائی تھوڑی ہیں؟ پھر کو مجھے اور سلمان کو بٹھایا تھا, دونوں نے, ہم دونوں بیٹھے ہیں, آپس میں بات ہوئی ہے, لیکن وہ کہتا ہے ہم دوست بن جاتے ہیں, لیکن ریلیشن وغیرہ شادی میں نہیں کر سکتا. لائیو آئیں گے, میچ کھیلیں گے. میں نے کہا نہیں ایسے نہیں میں نے کرنا, میں نے کیس لڑوں گی, جو میرے اللہ کو منظور ہوا, دائرے بنے ہوئے ہیں, جو بھی وہاں پہ ہوا دیکھ لیتے ہیں. بس یہی کہ یار جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی بھی وہ جو چیز دیکھ رہے ہیں نا وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے میں غلط ہوں, میں نے غلطی کی ہے, جو کہ ہم مسلمان ہیں, میں کہتی ہوں اللہ معاف کرنے والا ہے, تو میں تو ان سب سے بھی معافی مانگتی ہوں کہ میں اس نے حلف اٹھایا, میں اس کی باتوں میں آ گئی. جو لوگ مجھے برا کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں, میں سب سے معافی مانگتی ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ میری خود کی بھی غلطی ہے. یہ اللہ سے باتیں کی ہیں؟ میں تو خود اپنے آپ کو بہت گنہگار سمجھتی ہوں. میں کہتی ہوں انشاءاللہ اللہ پاک مجھے عمرے پہ بلا لے. میری بہن ہے, اس کی شادی ہوگی, اور میری مما ہے, وہ رات کو روم میں آ کے مجھے دیکھتی ہے, تکلیف میں رہتی ہیں, بس تو ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے. میری مما کا جو گھر چلتا ہے وہ عائشہ کی وجہ سے چلتا ہے. میرے چھوٹے 2 بھائی, اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے, بہت اوکھے ٹائم پہ لے کے آئی. مجھے لوگوں سے ایک گلہ ہے کہ ان کو عائشہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آپ کے گھر بھی ماں بیٹی ہیں, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی ویڈیو اٹھا کے آپ غلط کمنٹ کر رہے ہیں. کہ ابھی جو عائشہ کے ساتھ ہے وہ میں اور مما ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی عائشہ کو نہیں بلاتے. السلام علیکم جی, میں ہوں علی بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں GNC گلوبل. جیسا کہ لاسٹ ٹائم عائشہ سے بات کی تھی ہم نے, اور بات کر کے جانا تھا کہ ان کے جو سوشل میڈیا پر کیس بہت وائرل جا رہا ہے ان کے ریلیشن کے حوالے سے, مطلب ان کا اور ایک سلمان کا جو ریلیشن تھا, اور خاصی تنقید کا سامنا بھی ہے ان دونوں کو, دونوں طرف سے. تو اب اس کا آگے کیا موڑ آ رہا ہے ان کی زندگی میں, کہ اس میں سنا ہے کہ کوئی ان کی بات بھی ہوئی ہے, اس کے حوالے سے جانیں گے کہ یہ ختم کیسے ہوگا. عائشہ میرے ساتھ ہیں اور پتہ ہی چلا کہ ان کی خاصی طبیعت خراب ہے, تو ہم ان کے پاس آئے بات کرنے کے لیے, سوچا کہ ان سے بات کر کے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں عائشہ؟ میں ٹھیک, اللہ کا شکر. عائشہ کیا بات ہے کہ طبیعت آپ کی بڑی شدید خراب ہے, اور عشق کو دماغ کے ساتھ ساتھ, دل کے ساتھ ساتھ صحت پہ بھی سوار کر لیا ہے؟ کیا کروں, میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. ساری رات میں سو بھی نہیں پا رہی ہوں, سر میرا آدھا اتنا تکلیف میں ہے, میرے ہاتھ پاؤں ایسے تکلیف میں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کیا وجہ ہے کہ مطلب طبیعت خراب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے آپ کی؟ میری کل سلمان کو اور مجھے بٹھایا تھا, کیونکہ میں خود نہیں چاہتی کہ یہ چلتا ہی جائے چلتا ہی جائے, میں ذلیل اور ٹک ٹاک پہ ہو جاؤں جتنی میں ہو گئی ہوں. میں نہیں چاہتی اس سے زیادہ میں ذلیل ہوں, اس لیے میں نے اس چیز کو, لوگوں کی کچھ ویڈیوز دیکھی, مجھے وہ میں نے دل پہ لی کہ یار لوگ بھی برے وقت میں کسی کا کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. اس لیے میں نے کچھ چیزوں کو دیکھ کے میں نے کہا میں نے اور ٹک ٹاک پہ ذلیل نہیں ہونا. رات کو مجھے اور سلمان کو بٹھایا تھا, دونوں نے, ہم دونوں بیٹھے ہیں, آپس میں بات ہوئی ہے, لیکن وہ کہتا ہے ہم دوست بن جاتے ہیں, لیکن ریلیشن وغیرہ شادی میں نہیں کر سکتا. لائیو آئیں گے, میچ کھیلیں گے. میں نے کہا نہیں ایسے نہیں میں نے کرنا, میں نے کیس لڑوں گی, جو میرے اللہ کو منظور ہوا, دائرے بنے ہوئے ہیں, جو بھی وہاں پہ ہوا دیکھ لیتے ہیں. نہیں, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ میں ہم میچز کھیلا کریں گے, لائیو بیٹھا کریں گے, ریلیشن ختم کرنا ہے. تو ریلیشن تو ایک ایسی چیز ہے نا جس میں آپ پہلے بھی گئی تھیں, اور آپ نے جسمانی تعلقات رکھے تھے, ٹھیک ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں بالکل ایسے ہی. مطلب آپ نے کچھ جتنی دفعہ بھی ملی ہیں آپ کے یہ تعلقات ان کے ساتھ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل. جس کی وجہ سے ہی آپ کو تنقید کا سامنا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ان کے ساتھ حرام ریلیشن میں تھیں, آپ لوگوں کا نکاح نہیں ہے. اس کے حوالے سے کامنٹ سیکشن میں لوگ بڑا برا بھلا کہہ رہے ہیں. ویسے جو لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں نا کہ یہ چیز حرام ہے, تو وہ اس میں کوئی غلط نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے سلمان کی اس طرح ریلیشن میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا, میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی. پر میرے سامنے قسم دے رہا تھا, حلف اٹھا رہا تھا, اور 2 پیار کرنے والوں میں کوئی بھی اس طرح تو کسی کی باتوں میں آ جاتا ہے. جب ایک انسان آپ کے ساتھ پوری رات پورا دن بات کرے, ہر چیز آپ کو بتائے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو پھر آپ سے نہیں رہا جائے گا, پھر یہ آپ اس کے ساتھ رہو گے جو مرضی ہو جائے. پھر میں ایک سوال آپ سے یہاں عائشہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی جو شروعات تھی, کیونکہ آپ کا پرابلم بھی ہے کہ آپ نے بھی کہا ہوا کہ میرے ساتھ فزیکل رہا ہے, اس کی شروعات کس کی طرف سے ہوئی تھی؟ آپ کی طرف سے ہوئی تھی, اس کی طرف سے؟ میری طرف سے نہیں تھی بالکل بھی, میں اس چیز پہ پہلے راضی نہیں تھی. ٹھیک ہے, بعد میں جب باتوں میں آ کے جب شادی کی باتیں, پہلے بھی شادی کی بات کی, پھر جا کے میں نے کہا یار اتنا اگر حلف کوئی اٹھا رہا ہے, حلف سے
कुछ भी नहीं है। हलफ से ऊपर क्या बात रह जाती कि यार मैं हलफ उठाता हूँ मैं तेरे साथ रहूँगा, मेरे पास वॉइस नोट तक पड़े हुए इसके। फिर मैं, हर इंसान है गलतियों का पुतला है, हर इंसान बातों में आ जाता है, तो मैं भी आ गई इस जबकि वो डिनाई करता है, वो इस चीज़ को नहीं मानता, वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हमारे अंदर। आपको क्या लगता है कि लड़की लड़का एक साथ रहे, और जिस तरह की हमारी वीडियोस हैं, आप उनको क्या बहन भाई थोड़ी हैं फिर? अच्छा, एक ज़मीर अपना भी होता है ना, वो अंदर से खुद को मलामत करता है कि मुझसे गलती हुई है। कितनी शर्मिंदगी है कि मेरे से क्या हुआ। बस यही कि जब मैं बाहर निकलती हूँ, कोई आवाज़ें लगाता है ना आयशा, जब मैं बाहर निकलती हूँ ना, कोई मुझसे ये कहता ना, रात को बच्चे भी गली में कह रहे थे सलमान तू मुझसे प्यार नहीं करता ना, तो मैं रोने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ें याद आ जाती, क्योंकि ये तो सलमान को मैं कहती थी ना। तो टिकटॉक पे मैंने वीडियो भी लगाई, अब वो जहाँ जाओ सलमान सलमान, तो बड़ी सी चीज़ें होती हैं कि मैं लाइफ में चाह के भी नहीं भूल सकती कि एक चीज़ आपके सामने बार बार टिकटॉक पे आएगी, मैं बहुत तकलीफ़ और अजियत में रहूँगी। इससे बेहतर मैंने, एक तो दायरे बने हुए हैं हमारे, इंशाल्लाह केस करेंगे, इससे ना हुआ तो मैंने फिर जो भी होगा, जो अल्लाह को मंजूर होगा। अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह से बातें की हैं। मैं तो खुद अपने आप को बहुत गुनहगार समझती हूँ। मैं कहती हूँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे उम्रे पे बुला ले। मैं तो उम्रे की तैयारियां कर रही हूँ कि मैं उम्रा कर रहा हूँ। मैं इतनी गुनहगार हूँ, मैं एक पता नहीं क्या क्या हमारे से, हर इंसान गलतियों का पुतला होता है, इंसान से ही गलती होती है, गलतियाँ करके ही वो सीखता है कि लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपको हर चीज़ को फेस करना पड़ता है। और मैंने, मेरे पापा यहाँ नहीं होते, मैंने 15 से 17 साल अपनी फैमिली को देखा है। मेरे छोटे भाई हैं, मेरी बहन है, उसकी शादी हो गई, और मेरी मम्मा है, वो रात को रूम में आकर मुझे देखती है, तकलीफ़ में रहती हैं, बस तू ठीक है, तू ठीक है। मैं बड़ी सी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है मुझे। लोग जो है ना, वो बाहर जो उनका दिल आता है वो कह देते हैं। आयशा, शर्मिंदगी है, अल्लाह के हजूर भी अफसोस होता है कि ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ, लोग भी बुरा भला कह रहे हैं, क्या सोच आती है। बस यही कि यार जो लोग कह रहे हैं ना, कि उनकी भी वो जो चीज़ देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं गलत हूँ, मैंने गलती की है, जो कि हम मुसलमान हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह माफ़ करने वाला है, तो मैं तो इन सब से भी माफ़ी मांगती हूँ कि मैं, उसने हलफ उठाया, मैं उसकी बातों में आ गई। जो लोग मुझे बुरा कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़ के कि मेरी खुद की भी गलती है कि मैं उसकी बातों में आ गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत गुनहगार हूँ। मैं अपने अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है। लेकिन बात ये है कि आप एंड द एंड मुझे जो तकलीफ़ मिली, अजियत मिली है, मैं केस तो लड़ूंगी ना, मैं दोस्त बन के तो नहीं रह सकती कि मुझे फेम का था मैंने कर लिया। ठीक है, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन एंड तक मैं केस तक जाऊंगी, जो मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ। चलिए, वो तो आपका और अल्लाह का मामला है ना। अल्लाह खुद फरमाते हैं कि शिर्क के अलावा मैं हर गुनाह माफ़ करूँगा, और अल्लाह इनको भी माफ़ करे और इनकी ज़िंदगी में आसानियों के मामलात करे। पलवशा मेरे साथ मौजूद है, इनकी बड़ी बहन, इनसे बात करके जानूंगा। मैं बड़ी अफसरदा है, मैं जब आया था तो ये रो रही थी ज़ारो कतार, क्योंकि जग रसवाई भी है, लोग बातें भी करते हैं, घर से निकलती हैं, लोग ताने कसते हैं, ख़ानदान में भी लोग बातें करते होंगे, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पलवशा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप बहन हो के भाइयों की तरह अपनी बहन के साथ खड़ी हैं, जिधर जाना होता है आप साथ होती हैं, इतनी हिम्मत कहाँ से है। बस अपनी बहन को देखे, क्योंकि ये इसने हमारा बहुत साथ दिया है, बहुत औखे टाइम पे लेके आई। मेरी मम्मा का जो घर चलता है वो आयशा की वजह से चलता है। मेरे छोटे 2 भाई हैं। मेरे अब्बू छोड़ के चले गए, मैं आयशा देखती, मेरी शादी हो गई और मैं अपने घर को देखूं या उधर देखूं। मुझे लोगों से एक गिला है कि उनको आयशा के साथ खड़ा होना चाहिए। आपके घर भी माँ बेटी हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए कि उसकी वीडियो उठा के आप गलत कमेंट कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं ये है वो। देखे, मेरी बात सुने, किसी को शाउट आउट देना कोई गलत बात नहीं, किसी के साथ वीडियो बनाना, आप उसके साथ रिलेशन में नहीं हो जाते। वो लोगों के साथ वीडियो बनाती थी पहले, लड़कों के साथ वीडियो बनाते थे, मिलजुल के सारे चलते थे वो उसके। अब लोग उसको लेग से रंग दे के पेश कर रहे हैं वीडियो को, लेकिन हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दुख होता है आपको कि ये देखो, ये वाम को, हम मुसलमान हैं और मुसलमान को मुसलमान का साथ देना चाहिए कि बजाय इस चीज़ का कि आप उसको बेइज्जत करो, लेके चलो। लेकिन हम फिर भी अपने अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं, हम लोगों से नहीं रखते। लोगों से मेरी ये कि आप थोड़ा सा अपने गिरेबान में झाँक के और बस ये अल्लाह से डरें। अच्छा पलवशा, यहाँ पर मैं एक और सवाल करूँगा कि आपकी फैमिली के अंदर भी, जाहिर सी बात, आपके रिश्तेदार भी हैं, उनकी तरफ से क्या रवैया है। उनकी तरफ से यही रवैया है कि अभी जो आयशा के साथ है वो मैं और मम्मा हूँ, और दूसरा ये है कि भाई आयशा को नहीं बुलाते, बात नहीं करते आयशा के साथ। इतनी बड़ी बात है तो वो इस पर
गुस्सा करते होंगे और कहते होंगे बस हमसे ना मिला करो। उनको ये इससे गुस्सा है, पहले वो साथ ही थे, वो उनको ये है कि जब तू एप्लीकेशन लेने गई थी हमने तुम्हें मना किया था कि एप्लीकेशन ना ले, ये बंदा सुधरने वाला नहीं है, लेकिन ये सबसे लड़ के सलमान की बातों में आके एप्लीकेशन वापस लेके आई है। वो कहते हैं अब तू जान, तुम्हारा काम जाने, लेकिन ये है कि भाई हैं, दुख तो होता ही है, फिर भी है, मुझे आके पूछ लेते वो ठीक है ये वो। इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएंगे, उससे गलती हुई है और बाकी हमारे इदारे मौजूद हैं, इंशाल्लाह वो जो हक पर होगा, आयशा हक पर हो इसका साथ दें, सलमान हक पर हो उसका साथ दें। अच्छा आयशा, मेरा आपको एक मशवरा है कि आपने अपने साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है, इंसान की कोई औकात नहीं है। शिर्क के अलावा अल्लाह ने फरमाया मैं हर गुनाह माफ़ करूँगा। हम सारे ख़ताकार हैं, गलतियों के पुतले, हम सबसे कहीं ना कहीं गलतियाँ होती रहती हैं, तो अल्लाह इनके लिए भी आसानी करेगा। तो आप वैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करती कि जिस तरह बाकी लोग व्लॉगिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कोई लाइफ में कोई एक्टिविटी ले आओ, बस दुख से निकल आओ। देखो अब आप निकलोगी नहीं जब तक, तो लाइफ में बेहतरी कैसे आएगी? मैंने बनाया है एक यूट्यूब चैनल ना, मैंने कहा रोज़ उनको अपडेट मिलती रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आयशा जट व्लॉग के नाम से। तो इंशाल्लाह मैं कल एक व्लॉग अपलोड करूँगी। अच्छा, चलो अपनी डेली एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते रहा करो। अच्छे बुरे लोग हर तरह इस माशरे का हिस्सा हैं। अगर आप अपनी फैमिली की सपोर्ट में निकली हुई हो और कोशिश करती हो कि मेरे छोटे भाई हैं, छोटी जो भी घर के हैं ज़रूरियात हैं, मैं उनको पूरी करने के लिए कोशिश करूं, तो बिल्कुल हर इंसान को राइट है कि वो अपने घर के लिए एफ़र्ट्स करे। कोई बुरा रास्ता नहीं इख्तियार किया, गलती हुई है उसकी, उसने बराह रास्त आप लोगों से माफ़ी मांगी है, अल्लाह से माफ़ी मांगी है। बाकी इनका और कोर्ट का मामला है, दोनों फ्रीकैन का, इनका जो भी मुतफ़िका तौर पे मामला हल होगा वो भी इन फ्यूचर सोशल मीडिया पर ही चलता रहेगा और आप लोगों के सामने आ जाएगा। हमसे तो दुआ है कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे, इनके लिए भी उनके लिए भी, कि मामला अच्छे तरीके से बाइज़्ज़त तरीके से रफ़ा दफ़ा करें, एक दूसरे को जलील मत करें। और बाकी इनके और उनके वकील इस मामले को देख रहे हैं, फर्दर कोई अपडेट आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। और आयशा ने क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो इसने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है, तो उसको जाके सपोर्ट करें और इसके व्लॉग्स देखा करें ताकि ये अपनी लाइफ को थोड़ा सा बदल सके, ना कि कोई एक्सट्रीमली कोई स्टेप उठा ले और कल को हम कहें कि यार इससे तो अच्छा था कि उसको माफ़ कर दिया जाता। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए GNC ग्लोबल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।